بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ ملک عرب میں دین ابراہیمی کا رواج تھا اور اہل عرب شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت کو سب تسلیم کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا حج ہمیشہ کرتے تھے۔ حج کے ایام میں لڑائیوں کو بھی ملتوی کر دیتے تھے۔ ماہ شوال 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے طواف و زیارت کی آرزو بھی تھی۔ اس خواب سے اور بھی تحریک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ یعنی کہ زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ ماہ ذی القعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے 70 اونٹ ہمراہ لیے۔ احرام کا باندھنا اور قربانی کے اونٹوں کا ہمراہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ قریش مکہ کو بھی کسی طرح حق حاصل نہ تھا کہ وہ کعبہ کی زیارت سے کسی کو باز رکھے۔ مقام ذی الحلیفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو احتیاطاً بطور جاسوس آگے روانہ کیا۔ اس نے مقام اسفان میں واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حال سن کر بڑی زبردست جمعیت مقابلہ کے لیے فراہم کر لی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، اور اگر کوئی شخص ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو تو ہمیں مجبوراً اس سے لڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے سن کر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ قریش مکہ نے خالد بن ولید کو سواروں کا ایک دستہ دے کر مقام قراء الغمیم پر بھیج دیا کہ مسلمانوں کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان سے روانہ ہو کر راستے سے کسی قدر داہنی جانب کترا کر سفر اختیار کیا اور یکایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مغرب سے گزرے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی اس یکایک تبدیلی کو دیکھ کر مکہ کی طرف سر پر گھوڑا دوڑا کر گئے اور اہل مکہ کو مسلمانوں کے قریب پہنچ جانے کی اطلاع دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہوئے اس پہاڑی پشتے تک پہنچ گئے جس سے دوسری جانب اتر کے شہر مکہ کا نواحی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اونٹنی نے دھوکہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی نے دھوکہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ کے کنویں پر پہنچ کر قیام کیا۔ اس کنویں میں بہت ہی تھوڑا سا پانی تھا جو ذرا سی دیر میں ختم ہو گیا۔ لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ یہ تیر کنویں میں ڈال دو۔ تیر کے ڈالتے ہی پانی کنویں میں اس قدر بڑھ گیا کہ لشکر اسلام کو پانی کے قطعاً تکلیف نہ ہوئی۔ جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوئے تو قریش مکہ کی جانب سے بدیل بن ورقہ خزاعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگوں کے ہمراہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ قافلہ کے آگے قربانی کے اونٹوں کی قطار ہے اور ہم احرام باندھے ہوئے ہیں؟ بدیل یہ سن کر واپس چلا گیا اور قریش مکہ سے کہا کہ تم ناحق
शोर मचा रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत को आए हैं, तुमसे लड़ने को नहीं आए। कुरैश के फितना पसंद लोगों ने कहा कि हम उनको बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए भी नहीं आने देंगे, लेकिन उनके समझदार लोग कुछ खामोश होकर सोचने लगे। इसके बाद अहले मक्का ने हलीज बिन अलकमा कनानी कबाइल अहबीश के सरदार आज़म को कासिद बनाकर भेजा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तक भी नहीं आया, बल्कि कुर्बानी के ऊँटों को देखकर रास्ते ही से वापस चला गया और कहा कि मुसलमान लड़ने के इरादे से नहीं आए, बल्कि उम्रे के इरादे से आए हैं। ज़ियारत काबा से रोकने का कोई हक किसी को हासिल नहीं है। ये सुनकर कुरैश ने कहा कि तुम जंगली आदमी कुछ नहीं जानते हो, हम मुसलमानों को हरगिज़ मक्का में दाखिल न होने देंगे, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। हलीस को सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर तुम मुसलमानों को उम्रा ना अदा करने दोगे तो मैं अपने तमाम आदमियों को लेकर तुमसे लड़ूंगा। ये रंग देखकर कुरैश ने हलीस के गुस्से को ठंडा किया और मन्नत व समाजत के साथ समझा बुझाकर उसे खामोश किया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराश बिन उमैया खज़ाई को तगल्लुब नामी ऊँट देकर कुरैश मक्का के पास रवाना किया और कहला भिजवाया कि हम लड़ने के इरादे से नहीं आए, हमारा मकसूद सिर्फ ज़ियारत काबा से मुशर्रफ होना है और कुर्बानी अदा करना है। खराश ने यह पैगाम कुरैश को पहुँचाया। कुरैश ने खराश के ऊँट को ज़बह कर दिया और खराश को भी मार डालना चाहा, लेकिन हलीस और उसके लोगों ने खराश को कुरैश मक्का के जंगल से बचाकर वापस रवाना कर दिया और उसके बाद कुरैश के खुद सर नौजवानों की एक जमात मक्का से निकलकर वादी में आई कि वाक़या पाकर मुसलमानों पर हमला आवर हो, लेकिन साहबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने उनको देख लिया और सबको गिरफ्तार कर लिया, मगर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुआफिक सबको रिहा कर दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहले मक्का के पास भेजें। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझको अहले मक्का के पास जाने में कोई उज़्र नहीं है, लेकिन मक्का में मेरे कबीला बनो अदी बिन काब का कोई आदमी नहीं है जो मुझको अपनी हिमायत में ले, लिहाजा मेरा जाना खतरा का मौजिब हो सकता है। मुझसे बेहतर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, क्योंकि उनके कबीला बनो उमैया के बहुत से बाअसर और ताकतवर आदमी मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस तजवीज़ को बहुत पसंद फरमाया और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतौर एलची अबू सुफियान के पास रवाना किया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मक्का में सबसे अव्वल अबान बिन सईद बिन अल-आस से मुलाकात हुई। अबान ने फ़ौरन उनको अपनी हिमायत में ले लिया और अबू सुफियान और दूसरे सरदारान कुरैश के पास ले गया। सरदारान कुरैश ने सैयदना उस्मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनकर कहा, खाना काबा का तवाफ़ कर लो। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन्हा तवाफ़ नहीं कर सकता। ये सुनकर कुरैश बरहम हुए और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का में रोक लिया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब वापस आने में तवक्कुफ़ हुआ तो मुसलमानों में ये खबर मशहूर हुई कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का वालों ने शहीद कर दिया है। इस खबर के सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का बदला न लेंगे, यहाँ से न टलेंगे। चुनांचे उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ गए और तमाम सहाबा से जानिसारी की बैत ली। ये बैत बैत रिजवान के नाम से मशहूर हुई। इसका जिक्र कुरान शरीफ में इस तरह है कि जिस वक्त मुसलमानों ने ए रसूल तेरे हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की तो अल्लाह ताला उनसे खुश हो गया। मगर थोड़ी ही देर बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मक्का से तशरीफ़ ले आए और उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी किस्म की बैत की। कुफारे मक्का के माल अंदेश और समझदार लोगों ने तो लड़ाई करना पसंद न किया था, लेकिन कसरत उनमें ऐसे लोगों की थी जो फसाद पर आमादा थे। अब मुसलमानों की जंग पर आमादगी और तैयारी को देखकर ये फसादी लोग भी कुछ कुछ सुलह व आशिकी की तरफ माइल हुए। चुनांचे मक्का वालों ने कबीला बनु सकीफ के सरदार अरवा बिन मसऊद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। अरवा ने आकर कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश के तमाम कबाइल तुम्हारे मुकाबले के लिए आमादा व मुस्तैद हैं। तुम्हारे साथ जो लोग हैं, मुकाबले के वक्त ये सब तुमको तनहा छोड़कर भाग जाएंगे और कुरैश के सामने हरगिज़ न ठहर सकेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अरवा का ये कलाम सुनकर निहायत सख्त जवाब दिया। अरवा खामोश होकर रह गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरवा से कहा कि हम लड़ाई के इरादे से नहीं बल्कि उम्रे के इरादे से आए हैं, लेकिन अगर मक्का वाले लड़ाई पर आमादा हैं तो मैं अपने अम्र नबूवत के लिए उस वक्त तक इनसे लड़ूंगा जब तक मेरी हड्डियां गोश्त से बरहना न हो जाएं या अल्लाह ताला अपना हुक्म सादिर न फरमाए। मक्का वाले अगर चाहें तो एक मुद्दत के लिए मुझसे इल्तवाए जंग का मुआहदा कर सकते हैं। वो मुझको तबलीग व हिदायत का काम करने दें और चाहें तो खुद भी इस्लाम कबूल करके जंगो जदल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अरवा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रहा था तो वो अपना हाथ फैला फैला कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के करीब ले जाता था। सैयदना मुगैरा बिन शौबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसकी ये हरकत नागवार गुजरी। उन्होंने अपना कब्ज़ा शमशीर उसके हाथ पर मारा और मुअद्दिबाना कलाम करने के लिए कहा। अरवा जब कुरैश मक्का के पास वापस गया तो कहा, या मोशरे कुरैश, मैंने हराकिला रूम और अकासिरा ईरान के दरबार देखे हैं। मैंने किसी बादशाह को अपने हमराइयों में इस कदर महबूब व मुकर्रम नहीं पाया जिस कदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन में महबूब व बाइज़्ज़त हैं। असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते। जब वो कलाम करते हैं तो सब खामोशी से सुनते हैं और ताज़ीम की राह से उनकी तरफ निगाह भर कर नहीं देखते। ये लोग किसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात तुम्हारे सामने पेश की है तुम उसको कबूल कर लो और मुनासिब यही है कि सुलह व गनीमत जानो। इसके बाद कुरैश मक्का ने सुहैल बिन उमर को अपना मुख्तार कुल बनाकर भेजा और उसको समझा दिया कि सुलह सिर्फ इस तरह हो सकती है कि इस साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ अपने हमराइयों के वापस चले जाएं और आइंदा साल आकर उम्रा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से सुहैल को आते देखा तो फरमाया कि मामला अब सहल हो गया। कुरैश ने जब इस शख्स को भेजा है तो उनकी नीयत मुसालिहत की है। चुनांचे सहल ने शराइत सुलह पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शराइत को कबूल फरमा लिया। उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलहनामा लिखने के लिए तलब किए गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तावेज़ की पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो सुहैल ने कहा कि हम रहमान को नहीं जानते, तुम हमारे दस्तूर के मुआफिक लिखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ऐसे ही लिखो। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुहैल ने उस पर भी एतराज़ किया और कहा कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तस्लीम करते तो फिर यहाँ तक नौबत ही क्यों पहुँचती। तुम सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही लिखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ख्वाह तुम मानो या ना मानो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि सुहैल की ख्वाहिश के मुताबिक इस लफ्ज़ को काट दो।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا کہ میں لفظ رسول اللہ کو قلم سے کاٹوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں اپنے ہاتھ سے کاٹے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ پر قلم پھیر دیا۔ تو میرے دوستو، صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب آگے کا حصہ ہم بیان کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔